کے ساتھ نشست ہوگی، پاکستان کی سیاسی صورتحال، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے تعلقات، ڈان لیکس، جے آئی ٹی وغیرہ۔ نواز شریف، پاناما لیکس، ڈان لیکس، تیری انشاءاللہ لیکیں نکالتے رہیں گے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم سینیٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں۔ جو افغانستان پاکستان کے تعلقات، جو چمن بارڈر پر جب افغانستان کی فورسز نے کل اٹیک کیا اور اس میں پاکستان کے شہری شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد جو اس وقت صورتحال ہے وہاں بہت ٹینشن ہے۔ چمن پر جو بارڈر پاکستان افغانستان کا بارڈر ہے وہ ابھی تک مسلسل بند ہے، وہاں سے آمد و رفت کچھ نہیں ہو رہی۔ جو ہمارے منسٹر ہیں ڈیفینس کے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے یہ بڑی کلیئرلی کہا کہ یہ سب کابل اور دہلی کے ساتھ گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری سرحدوں کے خلاف ورزی ہوگی تو پھر بھرپور جواب دیں گے، اور افغانستان کا اس کی طرف سے یہ سلسلہ جو ہے یہ 1.5 سال سے جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان سے مثبت تعاون کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ سب انہوں نے باتیں کہیں، اور لیکن یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ افغانستان کے اندر جو ایک کشیدگی ہے سیاسی طور پر، اس کے نتیجے میں افغانستان یہ کر رہا ہے بارڈر پر پاکستان کے ساتھ۔ لیکن بہرحال اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوشش ہے، اور بدقسمتی سے دوستی کا جواب اس وقت افغانستان سے ایک گولی کی صورت میں آ رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے دوستی کے لیے ڈیلیگیشنز بھی گئی ہیں، ملٹری بھی اور پولیٹیکل بھی، لیکن جہاں افغانستان کے صدر کا تعلق ہے انہوں نے تو بدقسمتی سے یہی کہا کہ وہ ہرگز پاکستان نہیں آئیں گے، اور بڑی سخت انہوں نے موقف اختیار کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے ناظرین، قدرے اس کو پذیر آئی حاصل ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھاتا رہے گا پاکستان۔ اور ناظرین، پاکستان کی سرحدوں کے لیے پاک افواج موجود ہے اور ہر پل چکنا ہے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں، اپوزیشن کے لیڈر ہیں سینٹ میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو کی ایشوز ہیں اس وقت، چاہے اگر آپ سیاسی اکھاڑے کی بات کریں یا قانونی، اگر ہم کہیں دنگل ہو رہا ہے بہت سے ایشوز پہ، یا پھر آپ بات کریں سیکیورٹی اداروں کی اور حکومت کے تعلقات، ان سب پہ اعتزاز احسن کا اپنا ایک انفرادی ان کی پوزیشن ہے، پارٹی کی پوزیشن ہے، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو بڑی ایفیکٹولی۔ ویلکم ٹو دا پروگرام اعتزاز صاحب۔ اعتزاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل رات گئے ایک خبر آئی کہ پرائم منسٹر صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی، آرمی چیف گئے پرائم منسٹر ہاؤس، اور اس کے بعد جو متوقع تھی بات وہ ہوئی کہ اب یہ کہا جا رہا ہے نوٹیفیکیشن آئے گا اور یہ جو ڈان لیکس کا ایک سلسلہ چلا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ آر یو سیٹسفائیڈ ود دس؟ میرے اس کے میں سیٹسفائی ہونے یا نہیں ہونے کی کیا بات ہے، کیونکہ آپ کرٹیسزم بڑا کر رہے تھے، جن کے درمیان یہ معاملہ ہے وہ سیٹسفائی ہوں یا نہ ہوں، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں تو پہلے سے دن سے اس کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ سیرل المائیڈا نے کوئی ایسی بات کی ہے، جو اس کو فیڈ ہوئی ہے سٹوری وہ اس نے کی ہے، اور اس میں مجھے یہ محسوس لیکن ہوتا ہے کہ 2-3 قربانی کے بکرے بنائے گئے ہیں، سینیٹر پرویز رشید، طارق فاطمی اور راؤ تحسین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، ان میں ان کی آواز ذرا کم ہے۔ اصل معاملہ اگر کوئی میڈیا سیل کوئی ریلیز کوئی لیک کرتا ہے تو ہمیں یہ علم ہے کہ یہ بہت سارے اس بات کو شیئر کرتے ہیں، اس حقیقت کو کہ جب کشمیر پہ وزیر اعظم نے چند ماہ پہلے بلائی تھی ایک آل پارٹیز کانفرنس، تو وہ بند کمرے میں تھی اور اس کی کوئی خبر باہر نہیں جانی تھی چاہیے تھی،
لیکن جب ہم ابھی میٹنگ میں ہی تھے تو باہر پٹیاں چل رہی تھیں اور باہر خبریں چل رہی تھیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، چیئرمین بلاول نے یہ کہا ہے، اس نے شاہ محمود نے یہ کہا ہے، قمر کیرا نے یہ کہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے. یہ باہر چل رہی تھی، ہمیں نہیں بھی علم تھا. ہم باہر نکلے بعد میں تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ سب خبریں چل چکی ہیں. ہم نے احتجاج کیا 2 دن بعد، لیکن گورنمنٹ نے ڈینائی کیا. 2 دن بعد 2-3 دن بعد ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ شاہ محمود بھی تھے اور ترجمان وزیر اعظم ہاؤس محمد زبیر جو اب گورنر ہیں سندھ کے، وہ بھی موجود تھے اور غالباً کیرا صاحب بھی تھے. یہ کئی دفعہ چلا ہے. اس کے بعد تو شاہ محمود نے شکوہ کیا کہ میں نے یہ کوئی بات نہیں کی یا کس پیرائے میں نہیں کی، اور وہ چل گئی اس پیرائے میں. تو محمد زبیر نے کہا کہ یہ آپ نے بات کی. انہوں نے کہا میں نے نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے سنی. ارے بھائی آپ کہاں سن رہے تھے؟ آپ کیسے سن رہے تھے؟ آپ تو اس میٹنگ میں نہیں تھے. تو انہوں نے وضاحت کی کہ وہ میڈیا سیل میں بیٹھ کے ساری باتیں سن رہے تھے جو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بند کمرے میں ہو رہی تھی. APC secret تھا. Was it a closed session? Oh, it was a closed session, absolutely closed session, absolutely closed session. اور سارا میڈیا باہر جا چکا تھا، ان کو باہر جانے کی ہدایت ہو گئی ہوئی تھی اور کوئی اس میں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ہم سن رہے تھے. اب وہ میڈیا سیل جس کی سربراہ مریم نواز ہیں، وہ سنتی ہیں، وہ جانتی ہیں. ابھی میٹنگ ہوتی ہے رائے ونڈ میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں وزیر داخلہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں اور 1-2 اور لوگ ہیں. مریم صاحبہ اس میں نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت مریم صاحبہ کی طرف سے آتی ہے کہ کیا فیصلہ ہوا اس میں، کیا نہیں ہوا. وہ تردید کرتی ہیں اس بات کی کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے. اب وہ جانتی ہیں، وہ امین ہیں. تو حکومت تو زیادہ تر دلچسپی ہے حکومت کی مریم نواز کو بچانے کی. قربانی کے بکرے 2-3 بن گئے ہیں، کچھ اور بن جائیں گے. مریم کے لیے حسین نواز کو فال گائے بنایا گیا، بھائی کو. جب ICIJ نے ان کو اپروچ کیا شریف فیملی کو کہ آپ کا نام پیناما پیپرز میں آ رہا ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سے پہلے یا اس بارے میں، تو پیناما پیپرز تو 3 اپریل 2016 گزشتہ سال 3 اپریل کو بریک ہوئی سٹوری. لیکن مریم کو بچانے کے لیے جو اصل میں منروا ٹرسٹ کی مالک تھیں، جو انٹرن نیلسن اور نیسکول کی کمپنیوں کی مالک تھی منروا، جو انٹرن مالک تھی دونوں کمپنیاں 4 فلیٹس کی، ان کا فال گائے حسین نواز کو بنایا گیا. کیونکہ مریم کے ساتھ شریف خاندان، نواز شریف خاندان، ناٹ شریف خاندان، نواز شریف خاندان سمجھتا ہے ان کی فیوچر، ان کی مستقبل کی سیاست کی امین مریم ہے. تو ان کو بچانے کی ساری کوشش ہے. اس سلسلے میں یہ بھی میٹنگ ہوئی ہوگی. ابھی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو ICJ ہے انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا شریف خاندان کو، تو یہ آپ بات جو ہے مصدقہ کہہ رہے ہیں، یہ پبلکلی بات ہوئی ہے یا آپ کی اپنی کوئی سورسز ہیں جس کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو بات پبلکلی ہو چکی ہے. ICIJ بڑی رسپانسبل ادارہ ہے. اگر میرے خلاف کوئی خبر ان کے پاس پہنچی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا وضاحت پہلے لے لیں، اور خبر بریک کرنے سے پہلے انہوں نے بہت سو کو فون کیے جن کے نام پیناما پیپرز میں آ رہے تھے. اور ایز رسپانسبل جرنلسٹ، اٹس این انٹرنیشنل کمیٹی آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، تو انہوں نے یہ پوچھا. جب انہوں نے ہم حیران ہوتے تھے، ساری قوم حیران ہوئی کہ یک دم کیا ضرورت پڑی ہے فروری اور مارچ میں حسین نواز شریف کو
प्रोग्रामों में आके कहना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी ये अपार्टमेंट्स फील्ड हाउस के हमारे हैं। अब जरा आगे चलते हैं जी। 2-3 एंकर्स जी, मैं इत्तेज़ाज़ साहब ये बात बड़ी अहम है, आप इसको कह चुके मुतअद्दिद दफ़ा। में ज़रा डॉन लीक्स पर आके हम इस वापस आएंगे पनामा केस पे प्रोग्राम के दौरान। ये बताइएगा, डॉन लीक्स का इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने और पार्टी ने इस पर एक पोजीशन ली थी। जाहिर है पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि एतजाज़ अहसन द इंडिविजुअल, मतलब एतजाज़ अहसन द लीडर इन दी अपोजिशन जो कि सेनेट में है। तो ये बताइएगा कि खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि हम इदारे के साथ खड़े हैं, जो ट्वीट आया उस पर भी बात हुई। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो मामलात हैं वो लगता है कि सुलझाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब क्या ये पॉलिटिकल जो है स्फीयर उसमें से ये बात खत्म हो जाएगी डॉन लीक्स की, या फिर भी चलेगी? नहीं चलेगी, ये तो अभी पार्लियामेंट में आएगी, ये पब्लिक डोमेन में तो रहेगी। ये पब्लिक डोमेन में कई वजूहात से रहेगी। एक वजह तो ये रहेगी कि आया ये खबर दुरुस्त थी या गलत थी, फैब्रिकेटेड थी। पहले तो कहा गया कि ये खबर वाकया दुरुस्त थी कि किसी सिविलियन शख्सियत ने मिलिट्री शख्सियत को उस मीटिंग में कहा कि हम तो पकड़ना चाहते हैं दहशत गर्दों को, आप उनको पनाह देते हैं और हमारे हाथ रोकते हैं, जिससे दुनिया में ये इम्प्रेशन गया जब ये स्टोरी लीक कर दी गई कि दुनिया में इम्प्रेशन गया कि फ़ौज पुष्ट पनाही करती है दहशत गर्दों की और गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है। बाद में कहा गया कि ये तो खबर बात हुई ही नहीं, और अगर बात नहीं हुई तो ये फैब्रिकेटेड बात थी, और अगर फैब्रिकेटेड थी तो किसने फैब्रिकेट की, वो बड़ा अहम बात हो गया। तीसरी बात जिसकी वजह से ये जी बताइए, तीसरी बात जिसकी वजह से ये डोमेन में, पब्लिक डोमेन में और डिबेट में रहेगी इस कि आमिर रज़ा खान, जस्टिस आमिर रज़ा खान को ये मंसूब किया वज़ीर दाखिला ने ये मौक़िफ़ कि वो उस वक्त तक फैसला ने पे दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ये मुत्तफ़िका नहीं होगा। ये कहाँ का लॉजिक है, कहाँ का मंतक है कि 7 मेंबर कमेटी है और एक आदमी कह रहा है, चाहे वो सरबराह है, कि जब तक मुत्तफ़िका नहीं होगा, यानी जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं दस्तखत नहीं करूँगा। तो वो और बात इसमें जिस अंदाज से, जिस ट्वीट के ज़रिए वज़ीर आज़म के घर से निकले हुए, वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से निकले हुए फ़ाद हसन फ़ाद ही ने चाहे दस्तखत किए हों, नोटिफिकेशन या डायरेक्शन को जिस तरह ISPR ने नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड का है, वो क्या उनका इख्तियार था कि वो रिजेक्ट करें कि नहीं। सो डॉन लीक्स में तो बहुत चीज़ें अभी निकलनी हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में जो इनोसेंट लोगों को जिनको इन्होंने बनाया है उनको भी लाइन ऑफ फायर में लाए हैं, वो ज़फ़र अब्बास और सिरिल अल-माइदा है। उनको तो जो खबर मिली उन्होंने छापनी थी या उसको कुछ इस्तेमाल करना था। बाकी तो बहुत सारे मामलात, उस मामले को छोड़ के, डॉन के मामले को छोड़ के बहुत सारे मामलात हैं जो इसमें इस गवर्नमेंट की रेशा दवानियाँ आप कह लें या चालाकियों को, जी हाँ, उन चीज़ों पे निशानदेही आपने की है। जी, अब ये एक तो बात ये है कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट आ गई है नाज़रीन, और उसको मुत्तफ़िका तौर पे सबने दस्तखत किया और आ गया कि अग्रीमेंट एक हो गया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में सबसे पहले ये कि क्या अपोजिशन डिमांड करती है कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, वो देखना होगा। और अभी आपने सुना एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं बहुत सी चीज़ें जिस वजह से ये सियासी अखाड़े में बात रहेगी, लेकिन हमें ये जो हमने कल की डेवलपमेंट, कल और परसों की, कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई है, लगता है उस हवाले से इदारों में और हुकूमत में जो तनाव पैदा हुआ है डॉन लीक्स के हवाले से, वो शायद अब आने वाले दिनों में कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल हम नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एतजाज़ अहसन साहब से बात करेंगे पनामा केस पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। स्टे विद अस। ट्वीट ज़ेरे कातिल है, पर सिर्फ अगर मर्द हो तो मरियम नवाज शरीफ को भी ट्वीट करने से रोको।
बच्चे तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। को सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी सोच। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब हैं, उनसे हम गुफ्तगू करें। एतजाज़ साहब ये बताइएगा कि GIT बन गई है, उसको अपोजिशन ने भी वेलकम किया, यानी कि PTI जो मेन इसमें था कंटेस्टेंट उन्होंने वेलकम किया। हुकूमत कह रही है हम जो भी चाहेंगे जो चाहेगी GIT हम उसके साथ करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। उनको 2 करोड़ पैसे भी दे दिए, खर्च कर दिया, उनका दफ्तर भी बना दिया, उनको तमाम जो देनी थी अथॉरिटी FIA के हवाले से वो दिए। आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और ये करोड़ों में या पैसे में तोल के इख्तियारात को नापा नहीं जाता कि 2 करोड़ दे दिए हैं और वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ये क्या बात हुई? इंडिपेंडेंट तो वो होते अगर वो सुपीरियर ऑफिसर्स होते। ये तो सारे मातहत हैं वज़ीर आज़म के। और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद नामज़द किए हैं और ख़ुद मुंतखब किए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच पे ज़िम्मेदारी और बढ़ जाएगी कि ये शफाफ किस्म की इन्वेस्टिगेटिव टीम हो। मैं GIT को पहले दिन से कहता हूँ कि GIT इज़ नॉट द सॉल्यूशन, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तश्कील भी किया है, उन लोगों को सिलेक्ट भी मुंतखब भी सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट पर अब ये तो बार सारा सुप्रीम कोर्ट पर खुद चला गया। अब GIT की गलतियां या कोई उससे कोताहियां हुई तो वो तो समझा जाएगा कि बेंच ने नज़रअंदाज किए हैं या उनसे उनको ओवरसाइट है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कहता हूँ कोर्ट की, उन्होंने देखा नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जी। तो अब सूरत हाल तो बुनियादी तौर पे ये ना GIT की वाली थी ना कमीशन वाली थी। मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूँ कि 4 दिन का वो जो नहीं किया कोर्ट ने जी बिल्कुल आपने कहा, लेकिन कोर्ट ने नहीं किया। 5वें दिन फैसला हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो एक सिंपल रियाजी का सवाल था, रियाजी का, लेकिन नहीं किया कोर्ट ने। इस वक्त जजमेंट्स पड़ी हुई है जजेस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये नवाज शरीफ का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। अब अगर मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है नवाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग पे, और ये भी जजेस ने कहा है, बारहा कहा है कि उन्होंने तस्लीम किया है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदाद है एवनफील्ड हाउस की, ये नवाज शरीफ ख़ानदान की है। तो जब उन्होंने तस्लीम कर लिया, इकबाल कर लिया, तो उसके बाद तो सिंपल
उनसे तलब किए जाते सबूत लेकिन जो एतजाज नवाज साहब शरीफ कोर्ट ने ने वो कौमी रूट नहीं असेंबली लिया। में कहे। एतजाज साहब कोर्ट ने वो रूट नहीं लिया। अब तो जिस रूट पे आया है कोर्ट JIT, अब तो हमें उसी की बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब तो बात आगे बढ़ गई है। JIT पे ये बताइए, लोग बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि जो वकला जो थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनके ख़ानदान के, जो उन्होंने वहाँ शवाहिद पेश किए हैं या जो बातें वहाँ कही हैं, वही बातें इनको यहाँ JIT में रिपीट करनी पड़ेंगी। कैन दे चेंज एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स? ये कोशिश करेंगे, वकला तो नहीं, वकला तो जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगी करेंगे, पर शरीफ ख़ानदान मेरे ख्याल में यकीनन अब एविडेंस फैब्रिकेट करना की कोशिश करेगा। और अब हमें हर वो लाइन उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी, 547 सफ़ों की हर लाइन पर, ये मेरी बात याद रखें, हर उस लाइन पर तवज्जो देनी पड़ेगी। और ऐसी बीसियों, अगर सैकड़ों नहीं सैकड़ों लाइनें हैं गालिबन, जिसमें ये कहा गया है कि ये इस बात का भी सबूत मुहैया करने से नवाज शरीफ और उसके बच्चे कासिर रहे हैं, इस बात का भी सबूत मुहैया करने से कासिर रहे हैं, इस बात का भी सबूत मुहैया करने से कासिर रहे हैं, इस बात का भी सबूत मुहैया करने से कासिर रहे हैं, और ताकि वो नया फैब्रिकेट ना कर सके। अब ये फैब्रिकेट करेंगे, उन गैप्स को भरने की कोशिश करेंगे जो गैप्स खुद इनके सीनियर वकील सलमान अकरम राजा साहब जैसे मंजे हुए वकील ने खुद तस्लीम किया है कि देर आर लार्ज गैप्स इन दी केस of Nawaz Sharif and his children, large gaps। और उन्होंने कहा हमारे पास है नहीं एविडेंस। ठीक, भरने, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी अच्छा, ये तस्लीम किया है, पर अब ये कोशिश करेंगे कि इसको क्रिएट करने की, और इस पे मोहतात रहना पड़ेगा बेंच को, बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा बेंच को। बेंच ने अब ये जिम्मेदारी चूंकि अपने आप पे ले ली है कि ये तफ्तीश सही हो। बेंच की अपनी कंक्लूजन्स कुछ थी, कंक्लूजन्स अमूमी तौर पे मेजॉरिटी जो इस वक्त बेंच है उनकी अमूमी तौर पे ये कंक्लूजन्स थी कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ मोतबर नहीं है, उस पे एतबार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से वो 13 सवाल उठाए, वरना तो मामला खत्म हो जाता। एतजाज साहब, इसी वजह से वो सवाल भी उठे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने देखा कि जस्टिस एजाज अफजल साहब ने, उनको ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने कल एक ऑब्जर्वेशन दी जिसमें उन्होंने कहा हमने नवाज शरीफ को झूठा नहीं कहा, फैसले की गलत तशरीह ना रुकी तो कार्रवाई होगी। और ये उन्होंने कहा इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने कहा एक लीडर। और कल इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये कहा कि जी मैंने 2 जजेस के हवाले से कहा था और कहा था बाकी जो हैं वो जो एविडेंस मिला है उससे वो नहीं थे सेटिस्फाइड जो जजेस थे। तो ये बताएं कि ये कोई अजब बात है या नॉर्मल बात है कि इस तरह की बात जस्टिस एजाज साहब ने की? नहीं, देखिए, अगर तो इमरान ने बात ही 2 जजेस के हवाले से की है तो उन्होंने वजाहत कर दी है। मैं ये समझा था कि इमरान ने इस हवाले से बात की है कि तमाम जजेस में वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को नहीं माना, मोतबर नहीं समझा। अब इसको ज़रा अगर ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लें, वो सख्त लफ्ज़ होगा, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एजाज अफजल साहब को ये के सामने ये बात गई कि वो उन्होंने झूठा करार दिया है। अब अगर झूठे का लफ्ज़ सख्त है तो कम से कम ये तो बहरहाल कहा जा सकता है कि उन्होंने उनको नवाज शरीफ के लफ्ज़ को मोतबर नहीं समझा। ये पार्लिमानी ज़बान में भी मुनासिब है कहना, और मैं ये समझता हूँ कि मोतबर न अगर समझा होता मोतबर तो फिर आगे मामला ख़त्म ही हो जाता, फिर तो मामला आगे इंक्वायरी होती ना। तो चूँकि नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को मोतबर नहीं समझा गया, इसलिए ये इंक्वायरी आगे चल रही है। उसको ज़रा
इमरान ने अब तो खैर उन्होंने वजाहत कर दिया इमरान ने, तो इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 जजेस ने यकीनन ये कहा था जी कि सादिक और अमीन नहीं है, से ज्यादा, बिल्कुल सादिक और अमीन नहीं है, ज्यादा कुछ कहा। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सियासत पर बात करेंगे। आपको मालूम है कि अगले कुछ दिनों में कम से कम 25 के करीब अब जलसे जुलूस होंगे, इससे पहले कि रमज़ान शुरू हो। इस सब का क्या मतलब है, पीपल्स पार्टी की क्या सियासत है, इस सब पर बात करते हैं। स्टे विद अस। नवाज शरीफ, पनामा लीक्स, डॉन लीक्स, तेरी इंशाल्लाह लीकें निकालते रहेंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। नफरत, जहालत, जनूनियत, दिल्ली और काबुल का गठजोड़, मुखालिफिन के लिए दुआ, अक्ल पर नकल हावी। मजीद भी आपको दिखाएंगे। मैनहोल ने गोद उजाड़ दी। जाली पीर की असली धुलाई। अस्पताल में उधम। तीन साल तारीखी इस्तकबाल।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ। कहते रहे इस प्लेटफॉर्म से कि यकीनन लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन है, उसने जोर पकड़ लिया। ये तमाम मसले अपनी जगह हैं, लेकिन सियासत ने जोर पकड़ा है। एतजाज एहसन साहब, जरा देखिए तो आपके प्राइम मिनिस्टर का मूड क्या आजकल? ये सब शेर है, शेर। वो गीदड़ है, गीदड़। इंशाल्लाह 2018 में फिर शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा के ले जाएगा। तो एतजाज एहसन साहब, 2018 में शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतरों को उठा के ले जाएगा। मेरा ख्याल है आप लोगों का भी जिक्र है इसमें। चलिए, मैं जानवरों में और जानवरों की इस्तिलाहात और तशबीहात नहीं देता। मियाँ नवाज शरीफ पे कुछ मेरा ख्याल है उनके जीजी ब्रिगेड, गालम गलोच ब्रिगेड का असर होना शुरू हो गया है। ये तो वक्त बताता है क्या फ़ैसले होते हैं। मियाँ साहब आजकल निकले हैं कैंपेन पे और तीसरी मर्तबा एक मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। उनको तो मामू बनाया जा रहा है। तौसा ब्रिज जो गालबन तीसरी मर्तबा उसका इफ्तिताह किया है, उनको ज़रा अपनी टीम को खींचना चाहिए बजाय ये कि अपोजिशन को खींचे। अच्छा, ये बताइए एतजाज साहब कि जो गो नवाज गो का आप लोगों की तरफ से भी नारा और पीटीआई की तरफ से भी नारा, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अगर अपोजिशन इकट्ठी ना खड़ी हो एक जगह पे तो ये नारों से ज़्यादा कोई असर नहीं होता? नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बामी एतमाद बनेगा और कुछ इश्तराक भी होगा, इश्तराक अमल भी होगा। ये मेरी राय में तो करना ज़रूरी होगा। और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन तक या अगर कोई मोबिलाइजेशन करनी है तो उसके लिए इश्तराक अमल ज़रूरी होगा। बड़ा अहम आपने पॉइंट उठा। इश्तराक अमल, सब लोग इसी पर बात करें, लेकिन एतजाज एहसन साहब कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। आपको लग रहा है कि कोई पार्टी के अंदर आपके या किसी ने राब्ता किया हो पीटीआई से ऐसे? क्योंकि उधर से तो लगता नहीं कि इस वक्त ऐसा मूड है। मूड इसी तरह ही होते हैं। मैंने बड़े इत्तेहाद बनते देखे हैं
MRD کا اتحاد جو تھا جس میں 15 جماعتیں تھیں آپس میں، جس قسم کے ان کے شکوے اور گلے اور زخم تھے وہ تو نہ بھرنے والے تھے. PDF جب بنا، PDA جب بنا، ڈیک جب بنا، یہ اتحاد بنتے ہیں جب تو بڑی جلدی بن جاتے ہیں. اور ایک پلیٹ فارم پہ کم از کم پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ میرا خیال ہے اپوزیشن پارٹیز کافی آپس میں باہمی طور پہ کوآپریٹ کر رہی ہیں، اکٹھا چل رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے اس انٹرفیس سے لارجر انٹرفیس بنے، پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ڈیسیبل لیول، باہمی ڈیسیبل لیول اس کو اور ڈسکورس کا ایکریمنی کا لیول وہ کم ہو جائے. اور وہ کم ہوتا گیا تو کچھ بہت سارے راستے نکل سکتے ہیں. تو کوئی اس کا مطلب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی رابطے ہیں اس وقت دونوں پارٹیز کے درمیان؟ رابطے پارلیمانی سطح پہ تو ہیں. ٹھیک پارلیمانی اس کے علاوہ میں نہیں جانتا ہوں کہ نہیں ہوں. اچھا یہ جی سوری بتائیے. لیول پہ تو دونوں لیڈرز آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کل جماعتوں کے، کل اپوزیشن کی جماعتوں کا لیڈر ہوتا ہے. ان کو سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور یہ پارلیمنٹ کے اصول ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ ایک نہیں اعتزاز صاحب تھوڑا سا اگر ہم اس پہ موو کریں کہ جو لائرز ہیں ان پر بڑی امید تھی، بڑا تکیہ کیا تھا کہ لائرز نکلیں گے، وہ بھی کہیں گے پرائم منسٹر کو کہ ریزائن کریں. لائرز تو بڑی کلیئرلی ان میں ڈویژن سامنے آ گئی ہے. نسیم، لائرز اس طرح نہیں نکلتے، کوئی بھی گروپ اس طرح نہیں نکلتا. ہم نے جب نکالا تھا تو بڑی محنت کرنی پڑی تھی اور روزانہ کی محنت ہوتی تھی، اور ہم پہلے سب کو اکٹھا کرتے تھے، ایک چھت کے نیچے بٹھاتے تھے. ایک ہم نے لائرز پارلیمنٹ بنائی تھی جس میں 100 سے زیادہ بار ایسوسیشنز، ملک گیر بار ایسوسیشنز کے صدر اور سیکرٹری ہوتے تھے اور وائس پریزیڈنٹس ہوتے تھے. سکو 300. تو آپ کہہ رہے ہیں بہت اس پہ محنت کی ضرورت ہوگی، بہت انٹریکیٹ ہے. ان میں اپنی اپنی پارٹیز کی اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں، پرائیورٹیز ہوتی ہیں. اس میں مجھے اپنے ذاتی طور پہ اتنی تنقید کا نشانہ مجھے بننا پڑتا تھا، میں کر رہا ہوتا تھا. ہمیں یاد ہے جی، ہمیں یاد اور اتنا پر 2 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزار کے سب کو ملا کے ایک پالیسی پہ لا کے اور پھر ہم آگے چل پڑتے تھے. اچھا اب ذرا واپس جی آپ کہہ رہے ہیں جی لائرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، آپ کہہ رہے ہیں فوری طور پہ نہیں آئے گا لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا اگر ہم آپ کے پارٹی کی سیاست کی طرف آئیں، آپ زرداری صاحب کا موڈ ذرا سنیں، ان کا کیا موڈ ہے؟ شیر ہوگا کاغذی، وہ بلہ تو ہوگا دیسی. اچھا جی، بلے کی بھی ہو گئی کرٹیسزم اور شیر کی بھی ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو ایک عوامی شروع کیا احتجاج کہ بجلی، پانی اور بجلی پہ خاص طور پہ، تو آپ کا یہ کہا جاتا ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ آپ لوگوں کی پارٹی منظم نہیں ہے. کہا جاتا ہے پنجاب میں صورتحال دیکھیں، کسی بائی الیکشن یا کسی جو لوکل باڈیز الیکشن ہے اس میں کوئی آپ کی شوئنگ اچھی نہیں، تو پھر بھی امید ہے، پھر بھی یہی کہا جا رہا ہے پنجاب میں جا کے لڑیں گے. زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں پنجاب کو ہم جیتیں گے، وہ کیسے؟ یہ میں اس پہ آتا ہوں، مجھے ذرا 1-2 جملے وکلاء پہ کہہ لیں دو تاکہ وہ مکمل ہو جائے معاملہ. میں اس پہ آتا ہوں. وکلاء پہ جو توقع لگا لی گئی نا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار نے ایک بیان دے دیا، ایک دم کے 7 دن کا نوٹس دے دیا، اور اس سے جو زیادہ ہمارے ہاکس ہیں ان کو ایک توقع لگ گئی. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ایک موومنٹ پاکستان میں چلی ہے جو مکمل طور پہ کامیاب ہوئی ہے اپنے عزائم میں، جو بھی اس کے مقاصد تھے، وہ لائرز موومنٹ تھی 2007 مارچ 2007 سے مارچ 2009 تک 2 سال.
उस पे उसको इकट्ठा रखना और उसको नई नई जहतों से, कभी ब्लैक फ्लैग वीक, कभी मुल्कगीर धरने फैले हुए और एक्टिव रखना, ये बड़ा बार एसोसिएशंस की तरफ जाना, बाई रोड जाना, ये बड़ा मतलब दुश्वार काम था। और इसके लिए वरना लॉयर्स ग्रुप्स में बटे होते हैं, उनको सबको इकट्ठा करने का मौका मिल जाएगा। और मैं नाउमीद नहीं हूँ, मेरे ख्याल में वुकला ऐसी मूवमेंट में इकट्ठे होके कुछ वक्त लगेगा। जी साहब, प्रोग्राम का टाइम मैं चाह रही हूँ आप पीपल्स पार्टी पर आए जरा। जो आपकी पंजाब में आप कह रहे हैं कि जी हम पंजाब को करेंगे, हम जीतेंगे पंजाब, ये तमाम जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की इस वक्त, उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब में मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ मेहनत करनी पड़ेगी, पंजाब में फोकस करना पड़ेगा। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बेसिक बुनियाद है। हम अभी अपने अपने काडर को एक तरह एक्टिवेट कर रहे हैं। काडर कोर काडर जो पार्टी का है वो हमने जब चेयरमैन बिलावल ने हफ्ता तासीस लाहौर में मनाया था नवंबर में, या फैसलाबाद की रैली की थी, तो कोर काडर मोटिवेट करने लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि बिलावल किधर चले गए? आप लोगों ने कहा था बिलावल हैं वो पार्टी वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें तो आसिफ अली जरदारी साहब नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो लगता है फिर जरा वो तो कहीं कहीं किसी फेस्टिवल में नजर आते हैं, तकरीर करते हैं, लेकिन अवाम में वो नजर नहीं आ रहे। आ जाएंगे उनको ज़रूरी है कि वो आए। और हमारी ये ख्वाहिश है और हमारा ये इसरार है कि वो आए, और इस पे के लिए उनके आने से यकीनन एक बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये फरमाया इमरान खान केस पे, जो उनका नाअहली का केस है, उस पे उन्होंने अपने कमेंट्स में ये कहा कि एक अमेरिकन स्कॉलर ने ये कहा कि सियासी जमातों को अपनी डर्टी लॉन्ड्री जुडिशरी में नहीं, अदालत में नहीं लानी चाहिए। योर कमेंट्स सर? नहीं, जुडिशरी में पहली तो बात यह है डर्टी लॉन्ड्री किसको कहते हैं, और जुडिशरी में हर किस्म के केसेस जाते हैं। जजेस आर केपेबल ऑफ कोपिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ केसेस, और उसमें डर्टी लॉन्ड्री भी जाती है, सारी दुनिया में जाती है, इंडिया में इतना कुछ जाता है। अच्छा, तो जायज़ है ये ले जाना, सियासी जमातें जो ले जाती कोर्ट में तमाम केसेस। एतजाज़ हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने एतजाज़ से उनका मौक़िफ़ सुना मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इशूज़ पे। हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।